Hello everyone, I'm Nupur and welcome to my YouTube channel that is Impactful Learning with Nupur. So you can like, share and subscribe my channel, right? So in this channel you can find videos of CBSE grade 9 to 12 English subject which is absolutely beneficial for the students to score excellent marks. So if you are a keen learner then you should surely watch these videos made by me for my dear students, right? सो बच्चों आज हम चैप्टर 8 पढ़ेंगे गोइंग प्लेसेस जो कि क्लास 12th का चैप्टर है फ्लैमिंगो बुक से और ये इस फ्लैमिंगो बुक का लास्ट चैप्टर है ओके सो पहले मैं आपको ऑथर के बारे में कुछ फैक्ट्स बताऊंगी एक बार इंग्लिश में और एक बार हिंदी में ओके सो A.R. Barton was a modern English writer. He lived in Zurich and had written countless stories related to day-to-day life and issues of common people. In the story Going Places, A.R. Barton had described dreams and imagination of young girl Sophie, but how her dreams ended up in being her wrong notions about life is narrated in the story by A.R. Barton. So A.R. Barton एक मॉडर्न इंग्लिश राइटर थे, वे ज़ूरिक में रहते थे और उन्होंने कई सारी कहानियाँ लिखी थी जो हर ह्यूमन बीइंग्स की रोज़ की ज़िंदगी से रिलेट करती थी और कुछ इश्यूज़ या प्रॉब्लम के ऊपर वो स्टोरीज होती थी. गोइंग प्लेसेस जो स्टोरी हम आज पढ़ने वाले हैं उसमें A.R. बार्टन ने सोफी जो कि एक यंग गर्ल है उसके ड्रीम्स और इमेजिनेशन यानी सोचने की पावर को डिस्क्राइब किया है और कैसे सोफी के ड्रीम्स उसकी लाइफ को अंधेरे में रखते हैं ये स्टोरी में A.R. बार्टन ने एक्सप्रेस किया है. स्टूडेंट्स ये पूरा चैप्टर कॉन्वर्जेशन बेस्ड चैप्टर है जिसमें कई सारे कैरेक्टर्स हैं बट सोफी इस स्टोरी की प्रोटैगनिस्ट है यानी लीड कैरेक्टर है. इस चैप्टर को मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से आपको डिस्क्राइब करूंगी, आपको पढ़ाऊंगी. मैं एक पूरा पेज लूंगी और उसको एक बार इंग्लिश में डिस्क्राइब करूंगी और फिर हिंदी में डिस्क्राइब करूंगी. राइट मैं पैराग्राफ्स नहीं ले रही हूँ, मैं एक फुल पेज पूरा ले रही हूँ और उसको एक बार हिंदी में डिस्क्राइब करूंगी और एक बार इंग्लिश में. ठीक है, आपको जो भी लैंग्वेज कंफर्टेबल लगती है समझने में आप उस पर फोकस कर सकते हैं. आई होप आपको समझ आ गया होगा. राइट सो हम पैरा 1 से पेज 1 से स्टार्ट करते हैं जो कि व्हेन आई लीव से स्टार्ट है और ये नेक्स्ट पेज पर फिनिश होता है, 78 पेज पे फिनिश होता है नेवर अलाउ इट पे. राइट सो पहले मैं आपको इंग्लिश में समझाऊंगी देन हिंदी में. So one day Sophie, who is the main character or protagonist of the story, said to Jency, her good friend, that she wanted to open a boutique after completing her school. But Jency asked her that how it was possible for her as to start any business, because to start any business money is required. And Jency was doubtful and asked Sophie that from where she would be able to find money to make her dreams true, that is to open a boutique. Sophie then replied that she would become a manager to make some money for her dream, and Sophie further added that she wanted to become like Marie Quant, who was a famous fashion designer and also willing to be natural like her. Okay, so Sophie wanted to open an outstanding boutique in her city, but Jency, her friend, always remained on the ground level and she knew the reality very well. Jency was a practical girl unlike Sophie, who was always daydreaming and imagining things out of the box. Jency knew that they both had to work in the biscuit factory after finishing the school, and she felt sad for Sophie's daydreaming attitude. Okay, so she felt very bad for that. Then Jency asked Sophie to behave sensibly like an adult, and Jency knew that Sophie's dad would never allow her to open a boutique or doing something related to fashion. So बच्चों एक बार की बात है, सोफी जो कि मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी की, जो कि प्रोटैगनिस्ट है, वह अपनी फ्रेंड जेंसी के साथ स्कूल से आ रही थी. सो रास्ते में सोफी ने जेंसी से बोला कि वो एक बुटीक खोलना चाहती है जब उसकी स्कूल लाइफ ओवर हो जाएगी. यह बात सुनकर जेंसी ने सोफी से कहा कि कोई भी बिजनेस खोलने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है और जेंसी ने सोफी से क्वेश्चन किया कि पैसे कहाँ से आएंगे बुटीक खोलने के लिए. और जेंसी ने सोफी से यह भी बोला कि तुम्हें ऐसे ड्रीम्स देखने ही नहीं चाहिए जो प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो. तभी तुरंत ये सुनकर सोफी ने जेंसी से कहा कि ठीक है वह एक मैनेजर बन जाएगी और कुछ मनी सेव करके वह अपना बुटीक तो खोल ही लेगी. और फिर सोफी यह भी बोलती है कि उसको मैरी क्वांट जैसे बनना है जो एक फेमस फैशन डिज़ाइनर थी और सोफी मैरी क्वांट की तरह नेचुरल भी लगना चाहती थी. सोफी एक अमेजिंग सा बुटीक अपने शहर में खोलना चाहती थी पर उसकी फ्रेंड जेंसी जो थी वे काफ़ी प्रैक्टिकल लड़की थी, बहुत प्रैक्टिकल थी.
उसको रियलिटी पता थी कि ऐसा कुछ बड़ा होने नहीं वाला। एक तरीके से जेंसी काफ़ी प्रैक्टिकल थी और दूसरी तरफ सोफ़ी ख्वाबों की दुनिया में रहती थी। जेंसी को अपनी हकीकत पता थी, रियलिटी, ओके, उसको पता थी कि स्कूल फिनिश होने के बाद उनको एक बिस्किट फैक्ट्री में ही काम मिल सकता है, कुछ ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं होने वाला है। और जेंसी सोफ़ी की ख्वाबों की दुनिया को सुनकर बहुत दुखी हो जाती थी। ओके, उसके ड्रीम्स को सुनकर, उसकी इमेजिनेटिव वर्ल्ड को की बातों को सुनकर उसको बहुत सैड फील होता था, क्योंकि जेंसी को लगता था कि सोफ़ी इमेजिनेटिव वर्ल्ड में रहती है और उसके सपने पूरे होने के लिए काफ़ी पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। और जेंसी ये बात भी जानती थी कि सोफ़ी के फादर उसको फैशन से रिलेटेड तो कोई काम करने नहीं देंगे, उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे। ओवरऑल जेंसी सोफ़ी की लाइफ की रियलिटीज़ को ध्यान में रखकर दुखी हो जाया करती थी। ओके बच्चों, अब हम पेज नंबर नेक्स्ट पे आएंगे, पेज नंबर 78 पे आएंगे, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे और एन एक्ट्रेस से और फिनिश करेंगे देवर अननोन टू हर एंड रिमेन्ड आउट ऑफ हर रीच। रिमेन्ड आउट ऑफ हर रीच यहाँ पे है, पेज नंबर 79 पे है, सबसे ऊपर, ठीक है। So now students, when Jency told Sophie that Sophie's dad would never allow her to do anything related to fashion, then Sophie gave her the reply that she could become the actress to earn money and would open a boutique on the side. Sophie wanted to do something different or sophisticated. On the whole, Sophie tried to give a message to Jency that she could not give a stop to her dreams and didn't need anyone's approval also. Then Sophie entered her home where her whole family was involved in some work. And suddenly Sophie made an announcement which had caught everyone's attention. You know what she said? She said that if she got the chance to earn money, she would buy a boutique. Then her father instantly replied her that Sophie could buy a beautiful house for them instead of wasting money in opening a boutique. And he started eating his pie which was served to him. Then Derek, Sophie's younger brother, made a sarcastic comment on Sophie that Sophie has a habit of daydreaming and she thinks money grows on trees. Now students, Sophie's house was in a shabby state and Sophie felt a bit exhausted there because of steam coming from the stove, that is from the kitchen side. So she decided to find her brother Geoff, okay, to divert her mind. Geoff was repairing some parts of his motorcycle in the other room. He was Sophie's elder brother and 3 years out of school. He worked as a trainee mechanic and traveled very far every day to reach his workplace. Sophie didn't know a bit about her brother's life because he preferred to stay silent most of the time. At times, Sophie felt jealous of his brother's silence and she imagined that her brother was somewhere away in those places of the world where she had never been. Students, as you all know, Sophie had a habit of daydreaming, so she felt this way for her elder brother, Geoff, too. Okay? सो बच्चों, जब जेंसी ने सोफ़ी को बोला था कि सोफ़ी के डैड कभी भी उसको अलाउ नहीं करेंगे फैशन से रिलेटेड कोई भी काम करने को, पर सोफ़ी ने जेंसी को इस हिसाब से जवाब दिया कि वह एक्ट्रेस बन जाएगी जिससे कि उसकी अच्छी खासी अर्निंग हो जाएगी और साइड बाय साइड उन पैसों से वो अपना एक बुटीक खोल लेगी। उसने जेंसी को ये आंसर दिया। सो इससे ये पता चलता है कि सोफ़ी कुछ डिफरेंट या फिर कुछ सोफिस्टिकेटेड करना चाहती थी। इस तरीके से सोफ़ी ने जेंसी को एक मैसेज भी दे दिया था कि वह अपने ड्रीम्स को कभी भी नहीं रोकेगी और उसको किसी का भी अप्रूवल नहीं चाहिए था कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर सोफ़ी ने अपने घर में एंटर किया और वहाँ उसकी पूरी फैमिली अपने कुछ ना कुछ कामों में इन्वॉल्व थी। तभी सोफ़ी ने सबके सामने एक अनाउंसमेंट किया जिसने सबकी अटेंशन ले ली। सोफ़ी ने कहा कि अगर उसको चांस मिलेगा मनी अर्न करने का तो वह बुटीक खोल लेगी। इस बात पर सोफ़ी के फादर ने बोला कि अगर उसको सच में मनी अर्न करने का मौका मिलेगा सोफ़ी को, तो वह अपनी फैमिली के लिए एक ब्यूटीफुल सा हाउस खरीद दे बजाय कि एक बुटीक खरीदने के, ओके, और अपने मनी को वेस्ट करने के। इस तरीके से फादर ने थोड़ा सा सरकास्टिक कमेंट किया सोफ़ी पर, ओके। और फिर सोफ़ी के फादर अपना पाई खाने लगे जो उनको सर्व किया था। फिर सोफ़ी का जो छोटा भाई था डेरेक, उसने सोफ़ी पर एक कमेंट किया, सरकास्टिक कमेंट किया, जैसे भाई बहन कर ही देते हैं, कि सोफ़ी तो बस अपने सपनों की दुनिया में ही रहती है और उसे लगता है कि पैसे जो होते हैं वो तो पेड़ पर ही लगते हैं। इस तरीके से सोफ़ी के जो छोटा भाई था उसने सोफ़ी पर इस तरीके का मजाक उड़ाया उसका।
सो अब क्या होता है कि सोफ़ी का हाउस बहुत ज़्यादा क्लीन नहीं होता और सोफ़ी को थोड़ी घुटन सी फील हो रही होती है घर में, ओके, बिकॉज स्टोव से स्टीम आ रही होती है किचन साइड से, ओके। तो वो क्या करती है, अपने डाइवर्ट करने के लिए अपने आप को, वो अपने भाई, जो बड़ा भाई है जॉफ, उसको ढूंढने लगती है। जॉफ जो होता है वो एक रूम में बैठा होता है और अपने मोटरसाइकिल के पार्ट्स को रिपेयर कर रहा होता है। सो जॉफ का जो जो बड़ा भाई है, सोफ़ी का जो बड़ा भाई है जॉफ, वो उससे 3 साल बड़ा है, ओके, 3 ईयर्स बड़ा है, और उसने स्कूल भी पास आउट कर लिया है, ओके, 3 साल उसको हो गए स्कूल पास आउट करके। बड़ा भाई है। जॉफ एक ट्रेनी मैकेनिक था और वह अपने काम पर जाने के लिए बहुत दूर जाया करता था ट्रैवल करके, उसका वर्क प्लेस बहुत दूर था। सोफ़ी को अपने भाई जॉफ के बारे में, की लाइफ के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता था, पर जॉफ अधिकतर टाइम चुपचाप ही रहता था, इस वजह से साइलेंट रहता था, ओके। अधिकतर लड़के इस तरीके के ही होते हैं, मीन्स ऐसे जनरलाइज नहीं कर सकते हैं, पर जॉफ इस तरीके का था। कभी कभी सोफ़ी अपने भाई जॉफ को चुप रहने की आदत से जेलस भी हो जाती थी और ये भी सोचती थी कि क्या पता उसका भाई जॉफ किसी दूसरी ही दुनिया में रहता हो, जो दुनिया सोफ़ी ने कभी भी देखी ना हो। मीन्स कहीं ना कहीं जॉफ माइंड में कहीं लॉस्ट रहता था, ओके। सो बच्चों, आपको पता ही है कि सोफ़ी की डे ड्रीमिंग की आदत थी और इसी तरह से वह अपने भाई जॉफ के बारे में भी यही सोच रही थी, राइट। सो अब हम नेक्स्ट पेज पर आएंगे, हम पेज नंबर 79 पे आएंगे। हम स्टार्ट करेंगे परहैप्स देयर वर ऑल्सो से एंड हु शुड इट बी बट डेनी केसी पे ये फिनिश होगा, मीन्स लास्ट पे खत्म होगा, राइट। सो सोफी wanted to know the truth of his elder brother's life, Joff, who preferred to remain silent most of the times. Sophie imagined that it was also possible that her brother had interesting people in his life, but she also knew the fact that he didn't make new friends easily. But Sophie deeply wanted to know every bit of his brother's Joff's life and keenly wanted that someday he might take her with him where he used to go every day. But Sophie's father never allowed her to go with him, her brother Joff, because he knew that his son was a trainee mechanic, and according to her father, what was the use of taking Sophie to that place? But Sophie thought that her brother Joff found her too young to take her anywhere. Okay? So this is what she thought about so her elder brother. But Sophie wanted to see the vast world and wanted to experience as much as she could. Sophie also imagined the vast world outside her home, outside which was waiting madly for her arrival. Now Sophie dreamed and saw herself sitting behind Joff's motorcycle, and Joff wore shiny black leather clothes and Sophie a yellow dress, and the entire world rose to greet them. Now you can see that till where Sophie's imagination could run and what she thought about herself. Really, it seems quite funny also. Now Sophie took her brother that she met told her brother that she met Denny Casey. Student Denny Casey was Irish wonder boy of football. Okay, so he had countless fans. So Sophie's brother Joff was shocked to hear this and asked her where. Then she replied in arcade. Students, arcade means an arched building that includes shops. So then Sophie's brother asked her that did she tell her father about this Denny Casey meeting with her? Sophie then felt bad because her brother was unaware that he was always the first one with whom she shared her secrets. This shows that Sophie was extremely attached to her brother. But Joff didn't believe Sophie's statement. One day, Sophie was looking at the clothes in Royce's window. Royce's is a kind of clothing brand, okay? So she was looking out of the window, and suddenly, when someone came and stood beside her, and he was no other one than Denny Casey. Okay, who was that person? Denny Casey. सो सोफी अपने बड़े भाई जॉफ की लाइफ को बारीकी से जानना चाहती थी क्योंकि जॉफ अधिकतर टाइम चुप ही रहता था। सोफी यह भी सोचा करती थी कि क्या पता जॉफ की लाइफ में उसके कुछ इंटरेस्टिंग फ्रेंड्स हों, ओके, जिसके बारे में सोफी को ना पता हो। पर सोफी यह भी जानती थी कि जॉफ इतनी जल्दी नए फ्रेंड्स नहीं बनाता है। सोफी ये चाहती थी कि एक दिन जॉफ उसको अपने साथ ले जाए और वो भी जॉफ की लाइफ को देखे कि जॉफ की लाइफ किस तरीके की है। पर सोफी के फादर सोफी को कभी भी अलाउ नहीं करते जॉफ के साथ जाने के लिए, क्योंकि उनको तो पता ही था कि जॉफ एक ट्रेनी मैकेनिक है और ज़्यादा इंटरेस्टिंग कोई काम नहीं होता है वहाँ पे, वो मैकेनिक वाला काम ही करता है उधर, ओके। पर सोफी ये सोचती थी कि उसका भाई जॉफ उसको इसलिए नहीं ले जाता बाहर क्योंकि वह सोचता है कि सोफी छोटी है। पर सोफी बाहर की दुनिया को देखना चाहती थी, वे लाइफ को खुद एक्सपीरियंस करना चाहती थी, वे जानना चाहती थी कि उसके घर से बाहर की दुनिया कैसी लगती है। और सोफी को यह भी लगता था कि बाहर पूरी दुनिया उससे मिलने का वेट कर रही है,
इस तरीके की ड्रीम्स देखती थी वो। सोफी ये ड्रीम करती है कि वह अपने भाई जॉफ की मोटरसाइकिल के पीछे बैठी है और उसके ब्रदर ने ब्लैक लेदर के कपड़े पहने हैं और उसने येलो ड्रेस पहनी है और पूरी दुनिया उन्हें देखकर खड़े होकर तालियां बजा रही है। मतलब इस तरीके की ड्रीम्स देखा करती थी सोफी। ओके, ऐसी इमेजिनेशंस में हर समय रहती थी। सो अब क्या होता है बच्चों कि सोफी अपने ब्रदर जॉफ को ये बताती है कि वो डैनी कैसी से मिली है। बच्चों, डैनी कैसी जो है वो एक बहुत फेमस आयरिश फुटबॉल प्लेयर है इस स्टोरी में, जिसके बहुत फैंस हुआ करते थे। सो जॉफ जो होता है, जो उसका भाई होता है, वो ये सुनकर बहुत शॉक्ड हो जाता है और वो सोफी से पूछता है कि वो कहाँ मिली डैनी कैसी से। तो सोफी ने बताया कि वो एक बिल्डिंग जहाँ बहुत सारी शॉप्स होती हैं वहाँ मिली। तब फिर जॉफ ने सोफी से पूछा कि क्या उसने फादर को बताया है उनके कि वो डैनी कैसी से मिली है। ये सुनकर सोफी थोड़ा सा अजीब सा फील करती है और अपने भाई को ये कहती है कि उसको बुरा भी लगता है कि उसका भाई ऐसा क्यों सोचता है कि उसने पहले जो अपने फादर को बताया होगा, क्योंकि सोफी अपने जितने भी सीक्रेट्स होते हैं वो सबसे पहले जॉफ को ही बताती है। ओके, तो उसको ये सुनकर थोड़ा सा अजीब लगता है कि जॉफ को तो पता ही नहीं है कि सोफी सारे सीक्रेट्स पहले उसे बताती है। लेकिन जॉफ सोफी का डैनी कैसी से मिलने वाली बात पर ज़्यादा बिलीव नहीं करता है। उसको भी पता होता है कि ये बहुत स्टोरीज अपने दिमाग में बुनती है, बहुत इमेजिनेटिव वर्ल्ड में रहती है। ठीक है, सबको ये पता होता है। फिर एक दिन सोफी एक शॉप की विंडो से बाहर देख रही होती है कि तभी कौन आता है, डैनी कैसी उसके पीछे आके खड़ा हो जाता है। अब ये सोफी की इमेजिनेशन है या ये स्टोरी में की रियलिटी है, ये आपको आगे पता चलेगा। राइट। सो अब बच्चों आ जाओ पेज नंबर 80 पे। हम लोग चेंज करेंगे पेज, जो कि ऑल राइट व्हाट डज पे स्टार्ट है एंड हाउ इट हैड बीन दो ही वुड लाइक टू पे खत्म है। मीन्स ये खत्म है पेज नंबर 81 पे जहां स्टार्स बने हुए हैं। राइट। So now Sophie's brother Joff asked about the looks of Denny Casey. So Sophie just gave the minor details of Denny's looks as she knew that she was lying about meeting with Denny Casey. It was only her imagination, and students, you all know that Sophie was always dreaming about one thing or another. So in reality she didn't meet any Denny Casey, and she was only cooking up stories. Then Joff told his father that Sophie met Denny Casey. But father knew that Sophie was only cooking up stories and she had that habit of daydreaming. The father gave an angry look to Sophie for always speaking out unreal stuffs. Father and Joff then started talking about Denny Casey's latest performance in the football matches. And their father had an opinion about Denny Casey that if Denny Casey keeps himself on the ground level and does not get distracted from anything, then he is able to do wonders. But father didn't agree to this point that Denny's team had put him in first team as Denny was too young to be in first team. Means according to father, Denny Casey should play as a substitute player, but not as the main player of the football team United. Okay, so this kind of conversation father and Joff were having about Denny Casey, who was an Irish football player of United team. Then suddenly Sophie made an imaginative statement that Denny Casey was going to buy a shop. But father knew that this was Sophie's one of her weird wild stories, and she was always dreaming and imagining unreal incidents and stories. So अब क्या होता है बच्चों कि सोफी का जो ब्रदर होता है जॉफ, वो डेनी कैसी के लुक्स के बारे में पूछता है सोफी से। तो सोफी ज़्यादा डिटेल्स में डेनी के बारे में नहीं बता पाती है, क्योंकि सोफी को तो पता होता है ना कि वो झूठ बोल रही है। सो बच्चों, आपको पता है कि सोफी हर टाइम ड्रीम्स या फिर इमेजिनेटिव वर्ल्ड में रहा करती थी। सो डेनी कैसी से मिलना भी सोफी की इमेजिनेटिव स्टोरी थी, ये कोई भी रियल बात नहीं थी। फिर क्या होता है कि जॉफ अपने फादर को बताता है कि सोफी डेनी कैसी से मिली है, बट फादर को पता होता है कि सोफी ऐसी मतलब ये सब स्टोरीज बनाती रहती है, वो किसी डेनी कैसी से नहीं मिली है। उसको पता होता है कि ये सोफी की ड्रीमी दुनिया की कुछ कहानियां हैं। सो फादर और जॉफ फिर डेनी कैसी की फुटबॉल परफॉर्मेंस के बारे में बातें शुरू कर देते हैं, उनकी वैसी कॉन्वर्सेशन होनी शुरू हो जाती है। फिर फादर जॉफ से कहते हैं कि अगर डेनी कैसी ज़्यादा हवा में ना उड़ा और अगर उसके पैर ज़मीन पर रहे तो वो बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दे सकता है अपनी आयरिश फुटबॉल टीम के लिए, जो कि यूनाइटेड टीम का प्लेयर था वो। ठीक है, बट फादर एक बात से खुश नहीं था कि डेनी की टीम ने उसको मेन प्लेयर बना के फर्स्ट टीम में रखा हुआ था। फादर के अकॉर्डिंग डेनी कैसी टीम के लिए सब्स्टिट्यूट प्लेयर की तरह की प्लेस पर ही बेटर था, पर क्योंकि उसकी अभी भी सीखने की एज थी गेम को, ओके, मेन प्लेयर के लिए अभी भी वो रेडी नहीं था। सो इस तरह की कॉन्वर्जेशन जॉफ और फादर के बीच में हो रही थी। तभी सोफी बोलती है डेनी कैसी एक शॉप बाय करने वाला है, ऐसा मतलब अटेंशन लेने के लिए ऐसा एक स्टेटमेंट बोल देती है।
फादर को पता होता है कि सोफ़ी ये सब कहानियाँ बना रही है, टेंशन लेने के लिए कर रही है, ड्रीम्स अपनी इमेजिनेटिव बातें कर रही है, ठीक है, वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। सोफ़ी तो बस अपनी सपनों की दुनिया में ही रहना चाहती होती है, उसको वो हमेशा ऐसी अनरियल स्टोरीज़ कुक अप करती है और बताती है, ठीक है? सो बच्चों, इस स्टोरी को, इस चैप्टर को, गोइंग प्लेसेस को हम यहीं तक ही फिनिश करेंगे। आगे का चैप्टर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी, ओके? सो प्लीज शेयर दिस video among grade 12 students and don't forget to subscribe this channel, that is Impactful Learning with Nupur. Thank you so much.